हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम आगे सिलेबस कर रहे हैं प्लस टू में हमारा चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आफ्टर द 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। दिस वी हैव स्टार्टेड ऑन दिस चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। वी हैव डन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, and after that many other things, basic concept and equation of a line in vector form and equation of a line in Cartesian form. After that, distance between the two skew lines, definition of skew lines, which type of lines are skew lines. With figure I told everything, you can see the videos. Now forward today, and exercise 11.1, exercise 11.2 also done up to question 15 of exercise 11.2. now आज क्या कर रहे हैं हम, मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले एक फॉर्मूला है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, पैरेलल लाइन हम जानते हैं। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट से है बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 अपॉन वेक्टर बी। वेक्टर बी इज द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन विच आर पैरेलल लाइन। एक ही वेक्टर होगा, पैरेलल लाइन है, पैरेलल वेक्टर होता है बी। एंड a1 इज द पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a इज a1, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a on other line a2, that is the position vector of other line point. Position vector is a2, so a2 minus a1. Okay, this according to the skew lines definition and the formula also derived proof of formula of the distance between two skew line. तो उसमें डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ बट आफ्टर दैट क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction ratios are a b c and b minus c, c minus a and a minus b। ये दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं बेटा किसी लाइन के, अब लाइन क्या है किस फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल and then a b c are the direction ratios of the line। तो a b c डायरेक्शन ratios of the line in स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड है पहली लाइन तो बस दूसरी लाइन में b माइनस c एंड दैट, तो पैरेलल वेक्टर हो गए दोनों लाइन के, पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो लाइन के बीच में एंगल जो होता है वो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल ही होता है, हमने बताया आपको। तो आई हैव टोल्ड द फॉर्मूला बिटवीन द लाइंस एंगल that will be equal to between the parallel lines of the parallel vectors, between the parallel vectors of that line। तो b1 and b2, तो यहाँ पर ये आपका पैरेलल वेक्टर बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो आप कहेंगे पैरेलल वेक्टर parallel vector along line 1 is equal to पैरेलल वेक्टर। अब हमने इसको b1 कह दिया, पैरेलल वेक्टर होता है b से रिप्रेजेंट, हमें पता है। तो देन डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो ये होते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ आई जे के, ठीक है, ए बी सी। तो ए बी सी ही है डायरेक्ट, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, नाउ बी टू वेक्टर,
B2 vector is B minus Ci plus C minus A J plus A minus B K. This is your B2 vector. So these are the parallel vector to line 1 and line 2. So angle between the lines, so फॉर्मूला हम जानते हैं, so angle between the lines हाँ जी, एंगल बिटवीन टू लाइन्स बेटा, दैट cos theta we know, we have done in the last chapter this formula also, proof also, lex and in last videos also. Cos theta equal to b1 dot b2. ये पैरेलल वेक्टर है along the line. फर्स्ट लाइन के along पैरेलल वेक्टर b1, सेकंड लाइन के along पैरेलल वेक्टर b2. So between the parallel vectors, what is angle? That will be the angle between the line. Okay, because parallel line. That's why. Okay. So b1 dot b2 vector divided by magnitude of b1 to b2 magnitude. This formula we are using and putting this value. Then cos theta is equal to b1 dot this, a1 this and this dot product direct I am doing. ith component scalar component, bth jth scalar and kth scalar component dot product sum we know dot product. Okay, so direct a into b minus c. So I am solving ab minus ac. Okay, plus jth component b into c minus a. तो bc plus bc minus ab, ba और ab plus then c into a minus b, ac and minus bc. Okay, this divide by square root of scalar component and square the sum. So a square plus b square plus c square, square root a square plus b square plus c square into magnitude of b2 vector. b2 vector scalar component square sum b minus c whole square plus c minus a whole square plus a minus b whole square. Done. Simplify, a square root full. Now ac minus plus ac plus bc minus bc plus ab minus ab, the 0 point something. So this implies cos theta is equal to 0. अब cos theta 0 है, so this implies theta equal to 90 degree, theta equal to pi by 2. तो लाइन कैसी होगी? परपेंडिकुलर हो गई. ओके, एंगल बिटवीन द
लाइन्स, तो एंगल थीटा π/2 आंसर. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो पासिंग थ्रू origin means that point on the line x1, y1, z1 is 0, 0, 0. So point on the line 0, 0, 0, origin के पास हो रही है, तो point on the line. And direction ratios of the x-axis, because parallel to the x-axis है, तो पैरेलल वेक्टर वी आर टेकिंग एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन होते हैं. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. ओके, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं पैरेलल वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट. सो 1, 0, 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है जनरली. ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर 1. ठीक है, एक्स आई जे के, तो जे के फिनिश ओनली आई along x axis, I vector j 0 k 0, no any other, so 1, 0, 0. So this is the important point, direction ratio. So equation of the line, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. This is the Cartesian for x minus x1. x1 is 0 upon a is 1 equal to y minus 0, y1 0 upon b also 0, a b c. Then z minus 0 upon 0, that's why this also 0, z1, and this c also 0. So this is our required equation of the line. X upon 1 is equal to y upon 0 is equal to z upon 0. Answer. Okay, required line. Equation of the line parallel to x axis. Done. Clear? Yes. Next question. Important question is. Yes, beta. Next question. Question number 3. What is question number 3? If the lines x minus 1 upon minus 3 equal y minus 2 upon 2k equal z minus 3 upon 2, and second line x minus 1 upon 3k equal y minus 1 upon 1 is equal to z minus 6 upon 5 minus 5 are perpendicular. If the lines this and this are perpendicular, find the value. Okay, तो line perpendicular है, इसका मतलब इनके parallel vectors perpendicular है. Done. तो पैरेलल वेक्टर कौन से होंगे? ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ऑफ द लाइन. ये पैरेलल वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट है. तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ पैरेलल वेक्टर, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो, y x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1. ठीक है, x y z स्टैंडर्ड है. इसे भी देख लो, x माइनस 1, y माइनस 1, z माइनस 6 स्टैंडर्ड फॉर्म है. ओके, सो ए बी सी डायरेक्ट. तो वी हैव टू से इन द सॉल्यूशन according to question. Okay, what? B1 direct, B1 parallel vector to the line 1. This is minus 3i plus 2k j and plus 2k. This is parallel vector of line 1. Parallel vector to line 1. ओके बेटा, लाइन 1 हमारी ये है. डन. और पैरेलल वेक्टर
टू लाइन 2, ओके, क्या होगा B2 वेक्टर, दैट इज 3k है। भाई कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन से, 3ki प्लस 1j प्लस -5, तो -5k, डन। These two vectors we have these are perpendicular, so as B1 perpendicular to B2, because line 1 perpendicular line 2, गिवन, क्या है ये परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। सो एज दिस गिवन, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड वैल्यू, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, वी नो बाय प्रॉपर्टी। सो B1 dot B2 is equal to 0. This implies स्केलर कंपोनेंट की प्रोडक्ट A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, this is the dot product definition. तो -3 into 3 डायरेक्ट, -9k, 2k into 1 तो +2k, and then 2 into -5, okay, 2 into -5 -10 is equal to 0, okay. This property we know, if perpendicular vector तो dot product must be 0. तो -9 plus 2k minus 7k is equal to -10, उधर जाकर +10, then this implies k value, अब उधर जाकर +10 but divide by -7, तो -10 upon 7, this is the value of k, आंसर, डन। सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने परपेंडिकुलर ऑफ लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब कौन सी लाइन है, r वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस 2j प्लस 2k, यानी कौन सी इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म है। सेकेंड लाइन r इज इक्वल टू -4i माइनस k प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 2j माइनस 2k, दिस इज सेकेंड लाइन, ओके, ये भी वेक्टर फॉर्म में। तो क्या करना है हमें, इसमें कहा है कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या होता है, B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की फाइंड करके वेक्टर फॉर्म आएगी, डॉट, फिर डिफरेंस ऑफ द बोथ वेक्टर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 and A1 वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट गिवन ऑन द लाइंस 1 and 2, A1 and A2, ठीक है। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2 वेक्टर मैग्नीट्यूड,
this is your shortest distance between two lines. So now here comparing with standard equation of line, standard equation of line in vector form, उनसे कंपेयर करके हमें क्या लेना है, a1 a2 b1 b2 इनकी वैल्यू वेक्टर फॉर्म क्या होती है हमें पता है, वेक्टर फॉर्म में r इज इक्वल टू लाइन 1 के लिए a1 कहते हैं a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड लाइन 2 r वेक्टर सेम कंपेयर कर लेंगे r2 हो जाएगा, ठीक है, एंड a2, तो a2 वेक्टर एंड प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो नाउ कंपेयर करके क्या आ गया हमारे पास, a1 कितना बना पहली लाइन से, a1 वेक्टर इज 6i प्लस 2j प्लस 2k, सबको लिख लो इनको, ठीक है, एंड a2 वेक्टर क्या बन गया सेकेंड लाइन से -4i माइनस k, -4i माइनस k, ठीक है, b1 वेक्टर भी लिख लो, b1 वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट लाइन i माइनस 2j प्लस 2k, क्लियर, एंड उसको भी लिख लो b2 वेक्टर सेकेंड लाइन से पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन सेकेंड 3i माइनस 2j माइनस 2k, this, okay, now using these in the formula, तो a2 माइनस a1 कैलकुलेट कर लो, सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ये सब्ट्रैक्ट है ना, तो a2 हमारे पास है, a2 वेक्टर कहाँ है हमारा, ये a1 a2 ये रहा, a2 वेक्टर हमारे पास है, a1 वेक्टर हमारे पास है, तो a2 माइनस a1 ith विद ith माइनस a2 माइनस a1 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10i, j यहाँ 0 है, 0 माइनस 2 देन माइनस 2 j एंड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3k, okay, this now this value you got, now calculate cross product of these two vector b1 and b2, cross product how calculating, by determinant, okay, we know by determinant क्या i j k unit vector in first row, and then b1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1 माइनस 2 2 एंड b2 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 3 माइनस 2 माइनस 2, सिंप्लीफाई i along row and column कैंसिल, एक्सपेंड along the row 1 डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दिस I into this cancel, then minus 2 into minus 2, 2 to the 4 plus 4 and minus formula and 2 to the minus 4 minus minus plus 4, then
plus 4, 8. Then 8i and minus j. ठीक है, अब j का एक को फैक्टर की वजह से एक्सपेंड कर रहे हैं, सेकंड के लिए माइनस आता है, तो कैंसिल रो एंड कॉलम अलोंग j. Then 1 into minus 2, 3 into 2, 6, minus 2, minus 6, minus 8, and minus plus 8j. Okay, and plus now k along cancel row column. Then 1 2 ja 2, minus 2, and minus plus 3 2 ja 6, minus 2 plus 6 plus 4 k. ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया. ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड भी यूज होगा डिनोमिनेटर में, यही मैग्नीट्यूड भी निकाल लो. सो दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, magnitude of this equal square root of sum of the squares of the scalar component of ijk. Then 8 8 is 64 plus 64 and plus 16, 4 square 16, 6 4 10, 4 14, carry 1 1 1 2 6 8, 8 plus 6 14. Then square root 144, so then 12, because this is the square of the 12. So square root of this is 12, so magnitude 12. तो पुटिंग दीज वैल्यू, एक तो इसकी वैल्यू का यूज होना है, एक ये वैल्यू यूज होनी है, और एक ये. ठीक है, तो सब यूज करें यूजिंग 1 2 in shorter distance formula. Let this a, this formula. Okay, put in this in a. So what is that? Shorter distance is equal b1 क्रॉस b2 वेक्टर. ये हमारे पास 8i plus 8j plus 4k, 8i plus 8j plus 4k. This is cross product of the b1 and b2. ठीक है बेटा, and then dot product of equation 1 में a2 minus a1 minus 10i minus 2j minus 10i minus 2j and minus 3k. ओके बेटा, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की एंड डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 b2. ये मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ सॉल्व किया 12. ठीक है, तो दिस पुट हियर 12 डिवाइड बाय 12. नाउ दिस सिंप्लीफाई. ओके, सिंप्लीफाई दिस डॉट प्रोडक्ट स्केलर कंपोनेंट प्रोडक्ट सम 8 10 जा 80 minus 80. Then 8 2 ja 16 minus 16, 4 3 ja 12 minus 12, all negative, divide by 12. एंड ये डिस्टेंस है सो पॉजिटिव होती है, तो मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड कर लिया 6 plus 2 12 plus 16 38 28 सॉरी 28 and 80 108 एंड नेगेटिव 108 बन जाएगा पॉजिटिव 108 एब्सोल्यूट, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है अपॉन 12. 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 28, 4 7 जा 28 and 3 9 जा 27. तो 9 यूनिट डिस्टेंस कितनी हो गई? 9 यूनिट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डन, आंसर. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके,
हाँ बेटा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिसलेनियस चैप्टर आल्सो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन 5, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक पॉइंट दे दिया, लाइन की इक्वेशन बतानी है, वेक्टर इक्वेशन, उस पर पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो गया, x1 y1 z1, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट हो जाएगा। एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, इन दो लाइन पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो उसके अलोंग यानी पैरेलल, उसके किसके, लाइन के एक वेक्टर निकालना होगा। वो चाहिए हमें बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कैसे निकलेगा, हाउ कैन फाइंड बी वेक्टर, विल बी परपेंडिकुलर टू दीज बोथ लाइंस गिवन। तो perpendicular to the two vectors, any other vector we can find by cross product, we know it is the definition of the cross product। तो यहां से इन लाइन से क्या लेना होगा, जो इनके पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है, उनको क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट उनकी दोनों की, और जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। और जब इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा तो जो लाइन है इन पर परपेंडिकुलर, उसके वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर हमें चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो ये लिख लो आपका, पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, पॉइंट ऑन required line such that x1 y1 z1 equal 1 2 minus 4, 1 2 minus 4 given, ठीक है बेटा। एक चीज तो गेट, दूसरी बात क्या है, जो हमें वेक्टर चाहिए बी, ये ए वेक्टर बन जाएगा i + 2j - 4k। अब बी वेक्टर चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। अब बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, तो वो परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, या लाइन, तो उनका हमने परपेंडिकुलर टू द टू लाइन से इनका वेक्टर लेना है, इनके पैरेलल वेक्टर। तो लाइन 1 एंड लाइन 2, ये लाइन 1 कह दो, ये लाइन 2 कह दो, इन दोनों पर परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ईच lines such that cross product of this b1 and b2। अब इन लाइन के b1 b2 क्या होंगे, डिटर्मिनेंट से लेना होगा। अब b1 लाइन से डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, लाइन 1 से b1 3i - 16j एंड 7k। तो डिटर्मिनेंट में इनके कंपोनेंट भरने हैं सिर्फ, ठीक है। तो b1 i डिटर्मिनेंट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट i j k, क्लियर। देन b1 पहले लाइन से स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लो, x - 8 y + 19 z - 10, ठीक है। तो 3 - 16 7, 3 - 16 7। आफ्टर दैट सेकेंड लाइन से पैरेलल वेक्टर ऑफ सेकेंड लाइन है 3 8 - 5, डायरेक्शन रेशो 3 8 - 5। Now solve this determinant, expand along row 1। तो I along column row कैंसिल, डिटर्मिनेंट का मेथड का यूज करेंगे, एक्सपेंड कर रहे हैं 16 × 5 80 एंड माइनस प्रोडक्ट प्लस। तो 80 - 8 7 जा 56, 80 - 56 24, 80 - 56 24,
I. Clear? Now minus j. अब j along column and row cancel. Then 3 into minus 5 minus 15 सॉल्व कर रहे, ओरली सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस 15 हो गया एंड 3 into 7 21 minus 21, तो minus 15 एंड minus 21, तो 21 एंड 15 ऐड किया, 21 एंड 15 36, 21 एंड 15 36, तो दोनों ही माइनस के, माइनस 36 और माइनस ये हो गया तो प्लस 36, ठीक है। एक बार और देख लो, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, माइनस 21 माइनस 15, 15 एंड 21 36, ओके। देन प्लस के along column and row cancel, then 3 8 ja 24 and minus minus plus 16 3 ja 48, okay, add 72, okay, तो plus 72 k, clear, okay। Then after this is the पैरेलल वेक्टर, ओके। लैम्डा में इसमें सिंपल कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ले सकते हैं, इसको हम कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, लैम्डा हो जाएगा। तो व्हाट इज कॉमन फैक्टर हियर? 24 12, 24 2 जा 2i प्लस 12 3 जा 36 एंड 12 6 जा 72, ये क्या बन गया हमारा? लैम्डा कितना आ गया? कॉमन लिया हमने, वो बन गया लैम्डा, ये बन गया 12, ये लैम्डा में चला जाएगा, ठीक है, ओके, लैम्डा के साथ चला जाएगा। सो इक्वेशन, सो ये वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर, सो वेक्टर बी इज इक्वल 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये बी वेक्टर दिस पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, और ये परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स, इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है और रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल हो गया, ठीक है। सो दस रिक्वायर्ड इक्वेशन of line in वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में पूछा उसने, ओके, इन वेक्टर फॉर्म। सो क्या होती है वेक्टर फॉर्म? हमें पता है क्या होती है। आर वेक्टर इज इक्वल टू जनरल वेक्टर, जनरल पॉइंट ऑन दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ये 12 भी हमारा उस लैम्डा में चला जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा यानी स्केलर है, ये भी कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, तो लैम्डा की जगह फिर के लिख देंगे, कॉमन लिखना है तो, ओके। अदरवाइज इट इज नॉट मैटर, मैटर इज अदर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर पॉइंट दिस i प्लस 2j, i प्लस 2j, i प्लस 2j माइनस 4k, clear, this is position vector of the point, that is vector a, point given, and plus lambda को हम k कह देंगे, lambda और ये वैल्यू 12, so k into this vector 2i
प्लस 3j प्लस 6k. Done. So this is your required line answer. Okay. Now you like, share, watch and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. और उनको गाइड करो कि वो अपने आगे फ्रेंड को भेजे. और एक गाइड और करना है कि 10th 11th 12th की तीनों के लिंक हैं इसमें. 10th क्लास की सारी वीडियो एक लिंक में होंगी, 11th की सारी वीडियो एक लिंक में होंगी, 12th की सारी वीडियो एक लिंक में होंगी. उनको कहना कि आप पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी. तो वो लिंक को क्लिक करेंगे तब वो खुलेगी. तब पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल. अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लिंक नहीं खुलेगा. और उनको गाइड करो, आगे फ्रेंड को भी वो शेयर करें और सेम गाइड कर दें. आगे क्लासमेट होते हैं उनको भेज दें वीडियो, और उनको भी सेम गाइड कर दें कि वो भी फॉरवर्ड करें वीडियो को. जिनका भी बेनिफिट हो वो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट होना चाहिए. और उनको ये गाइड करना कि आप जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में ओके कि वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.